آج شام خداوند ہماری دعائیں سننے کے لیے یہاں پر موجود ہے اور وہ اترا ہوا ہے ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے خداوند موجود ہے۔ آمین۔ تو آپ تیار ہیں کہ اس سے اپنی مدد، اپنی برکت، اپنی قوت، اپنا زور، اپنی سلامتی حاصل کریں؟ کہیے آمین۔ ایسا نکالیے زبور 3۔ زبور 3 داؤد کا مزمور۔ جب وہ اپنے بیٹے ابی شلوم کے سامنے سے بھاگا، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوئی مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دان توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ داؤد ابی شلوم کے سامنے سے بھاگا، اور جب وہ بھاگا تھا، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ رات کو نکلا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب بیٹا مخالف ہو جائے اور بزرگ داؤد کو بھاگنا پڑے تو یہ کیسا لگے گا؟ بھاگنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ اس کا عادی تھا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طور پر سول کے سامنے سے وہ بھاگتا رہا، ایک بڑا عرصہ وہ اس نے جو ہے کبھی غاروں میں، کبھی میدانوں میں، کبھی فلسطینیوں کے ملک میں، اس کی بڑی زندگی کا ایک حصہ کیا ہوا کہ وہ بھاگنے میں گزرا۔ لیکن آج کوئی سچویشن فرق تھی اس کے لیے، کیونکہ آج جو ہے وہ اپنے بیٹے ابی شلوم کے سامنے سے وہ بھاگا تھا۔ اور داؤد نے، جب آپ دوسرا سیموئیل اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں، اس کی 14ویں آیت، تو لکھا، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلے، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابی شلوم سے نہیں بچے گا، چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آلے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تیخ کرے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس کے سامنے اس کے ساتھ چلے گئے، اور داؤد جو ہے وہ دشت کے گھاٹوں پر جو ہے وہ جا پہنچا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور جب آپ 30ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور داؤد کوئی زیتون پر چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا، اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا، وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخیتوفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی شلوم کے ساتھ ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کوئی زیتون پر چڑھائی پر چڑھ رہا تھا، وہ روتا جا رہا تھا اور اس کا سر ڈھکا ہوا تھا، اس نے اپنے سر کو یا وہ کور کیا ہوا تھا، اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جب بزرگی کے ایام میں جو ہے اس کی حالت کیسی ہے، رونا اور سر ڈھانکنا اور جو ہے ننگے پاؤں چلنا۔ اور جو ہے ایک کے بعد ایک بات اس کے سامنے آئی ہے کہ کہنے لگا اخیتوفل بھی جو ہے وہ مفسدوں کے ساتھ جو ہے میں شامل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی بعض دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جب رونا ہوتا ہے، سر ڈھانکنا ہوتا ہے، اور
जो है ज़िंदगी के जो है वो नंगे पाँव होता है, यानी बेचारगी हमारी ज़िंदगियों के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और लोग जो है ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदावन की कुम्मक जो है खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी। ये आवाज़ें जो है वो जारी होना शुरू हो जाती है कि इसको खुदावन की कुम्मक कभी भी हासिल नहीं हो सकती है। अजीज़ बहनों भाइयों, आज शाम हम इस बात का इकरार और ऐलान करेंगे कि खुदा किस तरह ऐसी बड़ी सिचुएशंस के अंदर जो है अपनी कुम्मक दिखाता है। हालेलुया। बास जब ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी के जो है चारों तरफ जो हमें ले लें, और ये देखिए कि दाऊद कहता है 10,000 आदमियों से नहीं डरने का, 10,000 लोग उसके चौगिर्द थे। इतनी सिचुएशन खराब हो, इतनी बुरी हालत हो किसी शख्स की कि जो है वो चारों तरफ से घिर गया हो, जो है चारों तरफ से सताया जा रहा हो, चारों तरफ से जो है वो मजबूरी और बेकसी का शिकार हो, तो सिचुएशन कैसी होती है, हालत कैसी होती है? बहुत बुरी होती है। लोग सोचते हैं कि इस शख्स का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, ये शख्स गिर गया है तो फिर कभी नहीं उठेगा, ये शख्स जो है ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा, इसको कभी भी बरकत नहीं मिल सकती है, ये खुदा से कुछ भी नहीं अब हासिल कर सकता है। लेकिन दाऊद की एक बात सुनिए कि ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला है। आमीन। ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। तो गोया खुदावन वो कहते हैं कि खुदावन की तरफ से उसकी कोई कुम्मक ना होगी, लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन तू है खुदावन हर तरफ मेरी सिपर, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला है। लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, लोग बातें बनाते हैं तो बनाने दीजिए। यह है दुश्मन अबलीस किस तरह की भी हालत में आपसे कहे तू गिर गया है, उठने का नहीं, तुझे बरकत नहीं मिलने की, तू जो है बेबरकत रहेगा, आप उसको ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला है। मैं बुलंद आवाज से खुदावन से फरियाद करता हूं। आमीन। मैं किस तरह से फरियाद करता हूं? बोलिए, किस तरह से? बोलिए। मैं बुलंद आवाज से खुदावन के हुजूर फरियाद करता हूं और वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। कहां से जवाब देता है? और आप अंदाजा ये कीजिए कि जब सदूक कहन ने क्या किया, वो अहद के संदूक को ये जा रहे थे तो साथ लेकर गया कि हम इसको साथ ले जाते हैं। दाऊद ने कहा इसे वापस ले जा, खुदावन के करम की निगाह मुझ पर हुई तो वो मुझे वापस लेकर आएगा। आमीन। उसे मालूम है कि अगर मैं दश्त में भी हूं, अगर मैं मालूम है कि मैं नंगे पांव हूं, अगर उसे पता है मेरे आज आंसू है और ये मेरा साथ ढका हुआ है और शायद शर्मिंदगी मेरी जिंदगी के अंदर आ गई है, लेकिन एक बात तो जरूर है, वो अपने कोई मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। आमीन। आसमानों के आसमान पर से जो है वो उसके लिए उतर आता है। कभी आप ज़बूर 18 पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा दाऊद के एक्सपीरियंस के हवाले से कि जब वो मुसीबत में हुआ, जब खुदा जो है उसको तंग करना शुरू हुआ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी दुआ जो है जब उसकी हुजूर में पहुंचती है तो खुदावन का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं आप? गौर से सुनिए, जहाँ ज़बूर 18 खुदावन का रिस्पॉन्स 6 आयत में आपको मिलेगा। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। अब और से सुनिए क्या हुआ, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। रिस्पॉन्स चेक कीजिए, तब जमीन हिल गई और कांप उठी। आमीन। तब जमीन क्या हुई? हिल गई और कांप उठी। फिर यही नहीं, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। आमीन। इसलिए कि वो क्या हुआ, उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी, कोयले उसे दहक उठे, उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया।
اور اس کے پاؤں کے تلے گہری تاریکی تھی. وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا. اسے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا. اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے. ٹھیک ہے، دیکھیے دشمن کو جو ہے جب خدا کے لوگ جو اس سے فریاد کرتے ہیں، اور جو کوئی مقدس میں سے وہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ مجھے کیا کرے گا، مجھے جواب دیتا ہے. نہیں جواب دے گا نہیں. کیا لکھا بائبل مقدس میں؟ پھر سے بولیے، جواب. ہاں جی، کیا کرتا ہے وہ جواب دے گا نہیں، بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جب ایسی سچویشن ہوئی تو اس نے کیا کہا، میں بلند آواز سے خداوند سے فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوئی مقدس پر سے مجھے کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے. اور اس کا جواب کیسا ہے؟ لکھا ہے اس کی حضوری کی جھلک اس سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگاروں سے جواب ملے گا. اور حق تعالیٰ آسمان میں گرجا، حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے. اس نے اب کیا کرنا شروع کیا، اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا. آمین. اس نے کیا چلائے؟ پھر اس نے تیر چلا کر کیا کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ دوپہر کو جو ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ زبور 91 پڑھتے ہیں جو ہے وہ جو ہے دوپہر کو کیا چلتے ہیں، اڑنے والے تیر چلتے ہیں. شیطان بھی اڑنے والے تیر چھوڑتا ہے، لیکن جو بلند آواز کے ساتھ اس کے حضور میں فریاد کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتا ہے، بولیے، جو ہے تیر چھوڑتا ہے تاکہ ان کو پرگندہ کر دے. آمین. بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی. تب تیری ڈانٹ سے خداوند تیرے نتھنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تہ دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں. اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کے باہر نکالا. اس نے میرے زوراور دشمنوں اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑایا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے. ہیلیلویا. چنانچہ میں کیا کروں گا جب یہ کہا جائے گا کہ کوئی میری کمک نہیں کر رہا ہے، کوئی جو ہے طرح طرح کی باتیں بنا رہا ہے، اور جو ہے کوئی جو ہے پتھر مار رہا ہے، کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی جو ہے آوازیں کس رہا ہے داؤد کو اور وہ روتا جا رہا ہے، اور کوئی زیتون کی چڑھائی پر چڑھ گیا جہاں پر جو ہے خداوند کو سجدہ کیا جاتا تھا. اندازہ یہ کیجئے کہ داؤد نے اس حالت کے اندر جب دعا اٹھائی اور اسی سچویشن میں جو ہے وہ پھر پکارا، اس کو یہ کنفرم ہو گیا وہ اپنے کوئی مقدس سے مجھے جواب دیتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مقدس سے جواب کیسا آتا ہے. زبور 18 میں آپ کو جو ہے اس ہیکل سے جو آسمانی ہیں جہاں پر اس کوئی مقدس میں سے جو ہے جواب کس طرح سے صادر ہوتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو اس طور پر جو ہے رسپانس کرتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. کیا آپ تیار ہیں کہ آج شام ایسا ہو؟ بولیے ہیلیلویا. اور سنیے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. کہنے لگا جب اس نے جو اس کو جواب مل گیا، جب اسے دعا کر لی، اور یہی بات کرائسٹ جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. کرائسٹ اس کو جو ہے اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، جو کچھ تم دعا میں مانگ لیتے ہو اس کا کیا کر لو، یقین کر لو تو وہ تم کو کیا ہو جائے گا، مل جائے گا. داؤد نے ایسا ہی جو ہے ایسا ہی کیا. اور وہ کیا کیا، اس نے جو ہے اس نے کہا میں نے بلند آواز سے خداوند کے حضور میں فریاد کی ہے. اور وہ کیا ہوا، پھر لکھا ہے کہ میں لیٹ کر سو گیا. کول اینڈ کام. آمین. کیا آپ ایسی سچویشن میں کول اینڈ کام ہو سکتے ہیں جب آپ کو آپ کی برکتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جب تاریکی نظر آ رہی ہو، تو کیا آپ کول اینڈ کام ہو سکتے ہیں؟ کیا جب آپ کو جو ہے بہت دور تک جو ہے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو تو کیا آپ کول اینڈ کام ہو سکتے ہیں؟ آمین. کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا آپ کی نیندیں پہلے والی اڑ جائیں گی، یا کروٹیں بدل کر جو ہے اپنا برا حال کر چکے ہوں گے اور جب اپنی صحت کو گرا چکے ہوں گے؟ لیکن داؤد یہ کہتا ہے وہ مجھے کوئی مقدس سے جواب دیتا ہے اور میں اپنی نیند پوری کروں گا. میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں اور جو ہے میں نیند پوری کروں گا. اور وہ سو کر لکھا ہے کہ میں لیٹ کر کیا ہو گیا، سو گیا. کیا کرنے لگا؟ دو باتیں ہیں، لیٹ کر
वो सो नहीं गया, वो लेटा, और जब बाज़ दफ़ा लेटा जाता है तो नींद नहीं पड़ती है। जो है सारी रात जो है तारे गिनते गिनते, सितारे गिनते गिनते गुजर जाती है, और जो है दाएं वाला या बीवी या शोहर या कोई भाई या बहन या माँ या बाप या जो है बच्चे ये पूछते हैं कि आज क्या हुआ है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तुझे नींद क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत ज़्यादा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा मेरे साथ नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग जो है डर जाते और बेईमानी की हालत में चले जाते हैं या काम इत्तेकादी की हालत में चले जाते हैं कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं बरकत पाल लूँगा, या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं छूट सकता हूँ। सिचुएशन बहुत ख़राब है मेरी, जो है हालात बड़े ख़राब है, मैं जो है फंस चुका, धंस चुका, तो फिर खुदा मेरे लिए क्या कर सकता है? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, उसे बहुत से पानियों में से क्या किया है? मुझे निकाल लिया। आमीन। उसे बहुत से पानी, ज़्यादा जो है थोड़े से पानियों में नहीं, बल्कि डूबने वाले पानियों में, जब मैं डूब रहा था, जब मैं धंस रहा था, दलदल में से कौन निकल सकता है? एक ही है जो निकाल सकता है। या जो पताल की गहराइयों में से जो है पताल में चला जाए, तो वो कैसे, पताल में से कौन निकाल सकता है? मैं तो नहीं निकाल सकता, ना ही कोई और निकाल सकता है। निकाल कौन सकता है? जिसके हुजूर में फरियाद की जाती है। आमीन। जिसके हुजूर में क्या किया जाता है? कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूं और मुझे कोई मुकद्दस में से जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। वो सारी रात जो है गहरी नींद जो है दाऊद ने ली। उस दिन, गौर से सुनिए, उस दिन दाऊद के खराटे जो है पूरे दश्त में जो है वो गूंज रहे थे। हालेलुया। उसके कभी खराटे ऐसे नहीं थे। जिस रात जब हम दुआ बुलंद आवाज के साथ उसके हुजूर में फरियाद करते हैं और बड़ा ईमान के साथ जब उसके हुजूर में फरियाद करते हैं, दश्त गूंज उठता है हमारी नींद की खराटों से। हालेलुया। और खराटे कब आते हैं? जब न बड़ी गहरी नींद में चला जाता है, कोई मालूम नहीं पड़ता है। उस दिन जो है दश्त जो है सिर्फ जो है वो दाऊद के खराटों से जो है वो गूंज रहा होगा, और साथ ही उसको देख रहे होंगे। बड़ी अजीब बात है, आज इतनी बुरी सिचुएशन है, आज इतना बुरा हाल है, दाऊद से बादशाही छिन रही है, दाऊद से जो है दाऊद का बेटा जो है उसके साथ बगावत कर रहा है, दाऊद का अपना घर से छूट गया, दाऊद जो है अहल का संदूक, वो अहल के संदूक से दूर हो गया है। लेकिन ये दाऊद जो है खराटे मार मार कर सोया हुआ है। अजीज बहनों भाइयों से मालूम है उसका वादा मेरे साथ है कि मेरी नस्ल से तो ऐसी बादशाही निकलने वाली है जो अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर मैं सोऊं तो और क्या करूं? हम अपनी नींदों को क्यों हराम कर रहे हैं? हम अपने आप को क्यों बेचैन कर रहे हैं? हम अपनी हालत के अंदर जो है अपनी ही हालत को क्यों खराब कर रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? बोलिए। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूं। आप कौन सी मीटिंग में आए हैं? बोलिए। आप दुआया शिवाया मीटिंग में आए हैं तो फिर आप दुआ उससे कीजिए, उसके हुजूर में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, उसके लिए अपने मुंह को खोलिए, और जो ही आप फरियाद करेंगे बड़े ईमान के साथ, वो अपने कोई मुकद्दस मर्द से वो आपको क्या करेगा? जवाब देगा। हालेलुया। मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं जो है गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता हैं। 10,000। हालेलुया। 10,000 आदमी जो है वो चक्कर लगा रहे उसके चागिर। ढूंढ लो जो है दाऊद को, पकड़ लो दाऊद को, जो है इसको जो है मार डालो दाऊद को। लेकिन दाऊद को कहां कोई ढूंढेगा? वो तो दुआ करके सोया हुआ है, और फरिश्तों का जो है एक बड़ा गिरोह उसे घेरा हुआ है। जो है 10,000 की बात करते हैं, उसके चौगिर तो लाखों लाख फरिश्ते जो है उसे घेरा डाले हुए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने फरिश्ते? बोलिए।
लश्कर या लश्करों का खुदावन जो है उसे घेरे हुए है, लाखों खरोबी जो है वो जो उसके साथ होते हैं। लिखा है वो खरोबी पर सवार होकर उड़ा, दिलदार बादलों के साथ जो है वो जब मूव करता है। और जो है आप सोचिए कि वो किस तरह जो है फरिश्तों ने उसे घेरा हुआ होगा, और अजीब सी नींद उसको जो है, अजीब सा जो मुतमइन जिंदगी उसकी जो है वो मुतमइन जो है वो उस रात था। मैं समझता हूं ये रात जो है उसके लिए बड़ी खास रात है। आमीन। और वो अब गौर से सुनी, उठ है खुदावन है मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। आमीन। क्या किया है बोलिए? तू मेरे दुश्मनों को जबड़े पर मारेगा नहीं, मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुनाचे आज शाम आप बड़े ईमान के साथ उसके हुजूर में दुआओं को उठाएं, और जब आप उसके हुजूर में फरियाद करेंगे तो फिर क्या होगा? वो कोई मुकद्दस से जवाब देगा और अपना हाथ बढ़ाएगा, बल्कि वो खुद उतरता है और फिर खुद उसका रिएक्शन सामने आता है। दुश्मन इब्लीस उसकी सारी कुव्वतें या सारी प्रिंसिपैलिटीज जो है वो पीछे जो मूव होना शुरू हो जाती है। अपने खुदावन से फरियाद करने के लिए आए हैं, अपने बादशाह के हुजूर में फरियाद करने के लिए आए हैं, लश्करों के खुदावन के हुजूर में फरियाद करने के लिए आए हैं। और उसके हुजूर में जिसके बेटे ने कहा था तुम मेरे नाम से मांगो तो पाओगे। आमीन। चनाचे आज शाम हम क्या करेंगे? उसके हुजूर में फरियाद करेंगे। आपको क्या चाहिए? आप क्या मांगना चाहते हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप जो है देखते हैं कि दुश्मन जो है मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरा रास्ता तंग किया है, लेकिन याद रखिए वो कुशादा राह जो है बनाने में कादिर खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया, वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। अगर आपका दम घुट रहा है तो घबराइए नहीं, फरियाद कीजिए। आमीन। घबराइए नहीं, क्या कीजिए? और जब आप फरियाद करेंगे, आज लिख लीजिए, जब आप फरियाद कर कर अपने घरों में जाएंगे, खुदा उन्हें अजीब तौर पर आपको यह अपने अंदर इत्मीनान जो है वो महसूस करेंगे। आमीन। अगर आप ईमान के साथ नहीं करेंगे तो आप कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। दाऊद से सीखिए, 10,000 उसको घेरे हुए हैं, मैं डरने का नहीं, क्योंकि वो क्या है, मैं उन 10,000 आदमियों से डरने का नहीं, क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। आमीन। वो मेरे दाहिने हाथ खड़ा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको कुछ हासिल हो? आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। अपने हाथ उसके हुजूर में बुलंद करें। हालेलुया। अपने हाथ उसके हुजूर में बुलंद करें। जो कुछ आपकी फरियाद है बुलंद आवाज के साथ उसके हुजूर में उसके हुजूर में पेश करें, और वो अजीब तरीके के साथ हमें बरकत देगा। रोना है तो फिक्र ना कीजिए, आंसू है घबराइए मत। जो है जो दाऊद की तरह सा ढाका गया है, ढांक लिया है, घबराइए मत। नंगे पांव की हालत है, घबराइए मत। दश्त के घाटों पर जो है आप रह रहे हैं, घबराइए मत। हर तरफ बियाबान नजर आता है, घबराइए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नींद आंखों से जो है वो दूर और ओझल हो गई है, घबराइए मत। आपको ये कहा जा रहा है कि इसकी खुदावन इसकी कुमक नहीं है, घबराइए मत। खुदावन मेरी सिपर है। इकरार ऐलान करना शुरू करे, प्रोक्लेम करे कि वो मेरी सिपर है, प्रोक्लेम करे कि हालेलुया, हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फखर है, मेरा जोर है। हालेलुया, उसने मेरे
के दांत तोड़ डाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने कोए मुकद्दस से मुझे जवाब देता है, वो मुझे जवाब देता है। हालेलुया। क्या आपको जवाब देता है? आइए फरियाद कर कर देखिए, उसके हुजूर में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और देखिए कि किस तरीके के साथ आपकी दुआ हर शाम सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप खुद अपने अंदर जो है उसकी सुपर पावर को, जो है सुपर नेचुरल पावर को महसूस करना शुरू कर रहे हैं। महसूस करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके रिस्पॉन्ड को देखिए कि खुदावंद आपकी फरियाद की कुव्वतें भाग रही हैं और आपके एरियाज को छोड़ रही हैं, आपके बदनों को और आपके घरानों को और आपके चौगिर्द जो जाल बुन रहा है वो तोड़ रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस।
भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह, आ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां, आ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू। जोरे बाजू है तू, तू ही संगीत है, जिसको जाकी शिफा, तू मेरा गीत है। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिसको जाकी शिफा, तू मेरा मीत है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, आ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां, आ मुझे थाम ले, धन की कुव्वत